हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। I'll give you a brief introduction about what geometric progression is. What I'll do is I'll write few numbers here और आपको next number बोलना है. Okay, let us say you have 2 here. Okay, 2, 4, 8, 16, 32, and what is the next number? Okay, 64. 64 कैसे देखो. नाउ यू आर गेटिंग दिस नंबर्स. पहला नंबर तो 2 है, राइट. यू आर गेटिंग द सेकेंड नंबर इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 टू द प्रीवियस नंबर, राइट. मतलब ये सेकेंड नंबर लिखने के लिए व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेकिंग द फर्स्ट नंबर और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग 4. एंड टू गेट दिस थर्ड नंबर यू आर टेकिंग द सेकेंड नंबर दैट इज 4 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 2. 8 आ गया, राइट. And to get this 16, what are you doing? You are taking 8 and multiplying by 2. आपको 16 आ गया, right? और ये 16 को 2 मल्टीप्लाई करो, you will get 32. अब ये 32 को 2 मल्टीप्लाई करो, you will get 64. Okay, you have found this pattern. So what are we doing here? We are multiplying by a certain number, right? What are we doing? We are multiplying by a same number, right? Certain number. In this case what is that number? 2. ठीक है ना? Okay, I'll write one more. 10, 100, 1000. हाँ, ये फोर्थ टर्म क्या है भैया बोलो. सी फर्स्ट टर्म, तो भाई फर्स्ट टर्म है. अच्छा, टू राइट द सेकेंड टर्म व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, राइट. हो गया 100. टू राइट द थर्ड टर्म आप क्या कर रहे हो, सेकेंड टर्म को ले रहे हो आप एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10, सो यू आर गेटिंग 1000. अब फोर्थ टर्म फाइंड करना है, राइट. सो यू विल टेक द थर्ड टर्म दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो यू विल हैव 10,000. ओके. So here what is the certain number that you are multiplying with now? 10. Okay. So ऐसे सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऐसे नंबर्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, in short GP. Okay, all right. I hope this is clear. See, what is the definition of this? Successive terms are obtained by multiplying the preceding term by a fixed number. Such a list of numbers is said to form geometric progression, isn't it? वही किया था हमने, right? 2, 4, 8, 16, 32 and so on. So how are we getting these numbers? By multiplying the preceding previous वाले number को we are multiplying by a certain number, right? Only then we are getting these numbers. That fixed number here is what? 2. और एक एग्जाम्पल देखा था हमने, ओके, ये वाला, राइट. सो व्हाट इज द फिक्स्ड नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग विथ? वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 10. ओके. So such numbers are said to form geometric progression. Okay. अब यहाँ पे geometric progression के हम terms पढ़ लेंगे. What are the terms involved in geometric progression? See, the first term is called as A. Okay. First term is denoted by A. And this number that you are multiplying with. Okay, यहाँ पे देखो fixed number is 2. यहाँ पर फिक्स नंबर इज 8. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो.
कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कॉमन रेशियो 10 है एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। ओके, ये हो गया फर्स्ट टर्म ए और ये हो गया कॉमन रेशियो आर। ओके, कॉमन रेशियो एंड ए। आई होप दिस इज क्लियर। भाई ये कॉमन रेशियो क्यों बुला रहे हैं इसको, देखो, यू टेक द सेकेंड नंबर डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर, मतलब 4/2 इज हाउ मच 2। You take the third number, divide by the second number, 8/4. This will also give you 2. You take 16, divide by 8. 16 divided by 8 is also 2. 32 divided by 16. 32 divided by 16 will also give you 2. तो ये रेशियो सब में सेम है, रेशियो सब में कॉमन है, hence this is called as common ratio and it is denoted by small letter r. I hope this is clear. All right. Okay. So I'll write here general form of geometric progression. भाई ये general form of geometric progression है क्या? देखो, first term is a, right? You are getting the second term by multiplying a certain number. That certain number is r. तो second number हम कैसे लिखेंगे, a multiplied by r. थर्ड नंबर कैसे लिखेंगे भाई, इसको आप r से मल्टीप्लाई करो, so r multiplied by r will become r square. So third one is ar square, fourth one is ar cube, fifth one is ar power 4 and so on. Okay, आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर पावर मतलब ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म है ए आर पावर 4. तो एक एक कम है, राइट? अगर फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पर पावर 4 है, अगर फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 है, राइट? अच्छा, तो भैया अब बोलो टेंथ टर्म का क्या होगा, ए आर पावर 9, राइट? ऐसे ही nth टर्म क्या होगा, ए आर पावर n-1, एक कम, राइट? ए आर पावर n-1. आई होप दिस इज क्लियर. मैं ये पूरा रब करता हूं एंड आई विल राइट दिस वन मोर टाइम. जनरल फॉर्म हमने पढ़ा, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जनरल फॉर्म का मतलब, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा यहाँ पर, राइट? सो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, third term is ar cube and so on. Okay, this is the general form of geometric progression. इसमें आपको nth term या फिर general term of geometric progression is given by an is equal to ar power n-1. Okay, general term मतलब एक टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी मतलब सब जीपी, राइट? सारे नंबर्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफरेंट, उसमें हम माइनस कर रहे थे, राइट? डिफरेंस. दिस इज रेशियो, वी आर फाइंडिंग द रेशियो, कॉमन रेशियो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, what is the difference between simple interest and compound interest, because ये I think in progressions it is little important. okay, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, राइट? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड डिफरेंस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट अस से आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो इन अ बैंक. You are depositing 100 rupees in a bank at a rate of 5% per annum, मतलब पर ईयर. ओके, आप बैंक को गए, ओके, 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया और आपको 5% मतलब 100 रुपीज़ पे 5% एवरी ईयर मिल रहे हैं आपको. ओके, सो फर्स्ट ईयर you will have how much amount? Let us see. सिंपल इंटरेस्ट का भाई फॉर्मूला है
पी टी आर डिवाइडेड बाई 100। आई होप आप ये बचपन में पढ़े होंगे। P is the principal amount, that is 100. Okay. T is the time, 1 year, multiplied by R. R is the percentage rate of interest divided by 100. तो ये 100 कैंसिल हो गया भाई, बना कितना 5। तो सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच, 5 रुपीज आफ्टर 1 year। इंटरेस्ट 5 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 year? Amount after 1 year will be 100 plus 5, 105। I'll write here simple interest 105 फर्स्ट ईयर का। ओके ठीक है भाई। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years क्या होगा, लेट अस सी। सेम थिंग, पी टी आर बाई 100, पी की वैल्यू है भाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट 100, टी की वैल्यू है 2 बिकॉज इट इज आफ्टर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कैंसल, 10 रुपीज, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 रुपीज और आपके पास पहले से कितने पैसे थे भाई, 100 रुपीज, राइट। सो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा ये 110 रुपीज। तो ये हो गया 110 सेकेंड। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 115, फिर नेक्स्ट ईयर 120 एंड सो ऑन, right? I hope this is clear. Okay, so if you find this, if you observe carefully, the amount, this 105, 110, 115, 120 is in arithmetic progression, right? Is in arithmetic progression. Common difference देखो आप, 110 minus 105 भाई कितना हो गया 5, 115 माइनस 110 भाई हो गया 5, 120 माइनस 115 भाई हो गया 5, राइट। डिफरेंस इज सेम। तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये दिमाग में बिठा लो, सिंपल इंटरेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, compound interest will always be in geometric progression. Okay, let us see how. हाँ, let us take the same scenario. आप बैंक गए, आपने 100 रुपीज डिपॉजिट करा, राइट, एट 5% पर ईयर। एक साल में 5% बढ़ रहा है, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इनिशियली, जो आप पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो, वो अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं है, वी विल सी। ओके, सो आफ्टर 1 year व्हाट विल बी द अमाउंट, देखो 5% ऑफ 100, ओके, 5% ऑफ 100, तो 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, तो भाई ये हो गया 5 रुपीज। सो आफ्टर 1 year you will have how much, 105। तो आई एम राइटिंग हियर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स, दिस इज 105 आफ्टर 1 year। ओके, आफ्टर 2 years आपको 5% ऑफ 100 नहीं करना है, अब 5% ऑफ 105 रुपीज करना है, राइट। तो जो आपका अमाउंट अब है, अब कितना है आपके पास अमाउंट, 105 रुपीज, इस पर 5% लगेगा, not on 100। okay, so 5% of this one will be equal to how much, ये हो गया भाई 5 multiplied by 1.05। okay, 1.05 multiplied by 5 हो गया 25, 5 1 is 5। so this will be added to 105। तो 5.25 को अगर आप ये ऐड कर दोगे तो 110.25। so the next year you will have this much amount। okay, 110.25। इनिशियली क्या था भाई 100, फिर हो गया 105, फिर हो गया 110.25। क्लियरली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, राइट। क्लियरली दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो इट इज नॉट 5, ऑलराइट। सो दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। okay, you go ahead and divide these terms,
अगर आप इसको फर्स्ट टर्म लोगे, इसको सेकेंड टर्म लोगे, इसको थर्ड टर्म लोगे, तो इफ़ यू फाइंड A2 बाई A1 दैट विल बी इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2. ओके, I'll explain you using the formula also, but I need some place for that. I hope ये पेज आपको समझ में आ गया होगा. I'll just erase everything. Okay, ठीक है भाई. Come back to compound interest. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? देखो, अमाउंट का फॉर्मूला है ये, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T. T इज द टाइम पीरियड. ओके, पहले प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5%. ओके, टाइम पीरियड लेट अस से 1 ईयर. 1 ईयर के बाद में हाउ मच अमाउंट यू विल हैव? 100 multiplied by 1 plus 5 by 100 whole power 1. ओके, ये हो गया. So this is how much? 100. Okay, so this is how much? 100. This is 100 plus 5. So this will be 100 multiplied by 105 divided by 100. Okay, so this is after 1 year. First year, I'm writing it like this. I'm not simplifying. 105 divided by 100. अच्छा भाई, ऐसे, राइट? सेकेंड ईयर कितना होगा भाई? देखो, टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? एवरीथिंग एल्स इज सेम, बट टी के बजाय टी इज इक्वल टू 1 के बजाय टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर हो गया. ओके, ऐसे ही थर्ड ईयर का कितना होगा भाई? 100 105 डिवाइडेड बाई 100 होल क्यूब. अगर आप ये नंबर्स देखो, ये नंबर देखो, तो व्हाट आर दिस नंबर्स नाउ? सी, 100 105 डिवाइडेड बाई 100, ये एक फर्स्ट टर्म है. 100 105 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर. ओके, यू आर गेटिंग दिस नंबर, सेकेंड नंबर, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 100 बाई 105 डिवाइडेड बाई 100. थर्ड नंबर देखो भाई, 105 100 होल क्यूब एंड सो ऑन, राइट? सो व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर? 105 डिवाइडेड बाई 100. ओके, सो ये जो ब्रैकेट्स में, फॉर्मूला के ब्रैकेट्स में जो भी होगा भाई, ये है आपका कॉमन रेशियो इन कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, और रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट है ना हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज गो बैक एंड वॉच इट अगेन. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओके, लेट अस स्टार्ट the exercise. Okay, in which of the following situations does the list of numbers involved is in the form of geometric progression? अच्छा भाई, first, salary of Sharmila when her salary is 5 lakh for the first year and expected to receive yearly increase of 10%. ये तो भाई exact compound interest का ही प्रॉब्लम है, राइट? isn't it? देखो भाई, फर्स्ट ईयर में शर्मिला की सैलरी है 5 lakh rupees, right? And every year she'll get an increment of 10%. Okay, तो 10% of 5 lakhs, तो कितना होगा भाई? 10 by 100 multiplied by 5 lakh. एक दो कैंसिल, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया 50,000, राइट? तो सेकेंड ईयर में she'll get an increment of 50,000. तो सेकेंड ईयर में सैलरी कितनी होगी भाई? 5 lakhs और 50,000, राइट? 5 lakhs and 50,000. दिस विल बी द अमाउंट आई एम राइटिंग हियर. पहले ईयर में 5,000 रुपया, राइट? ये हो गया. सेकेंड ईयर में 5,050. ओके, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर. ओके, अब देखो भैया थर्ड ईयर में कितनी होगी सैलरी? थर्ड ईयर में, ओके,
Okay, she is getting 10% of 5,50,000 now. Okay, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 5,50,000, 1 2 कैंसिल, 55,000, 55,000। अब ये 55,000 आप ऐड किसको करोगे? 5,50,000 को यू विल ऐड 55,000। ओके, सो ये हो गया 506। ओके, ये हो गया 6,05,000, राइट? एंड यू विल गेट द सेम नंबर्स लाइक दिस। अब आपको मालूम करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ऑब्वियसली सी दिस इज लाइक compound interest, right? This is like compound interest, so this will be in geometric progression. All right, हाँ देखो, what were the numbers? 5 lakhs ये पहला नंबर था, 5,50,000 was the second number, 6,05,000। okay, ये numbers है। you divide these terms, you will get the common ratio। okay, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, राइट? यूजिंग दिस फॉर्मूला, P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T, राइट? सो भैया ये हो गया कितना, 5 लाख, 1 प्लस R 10 बाई 100 होल पावर 1। सो आफ्टर 1 ईयर की सैलरी है ये, राइट? ओके, एंड आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, 1 प्लस 10 बाई 100 होल स्क्वायर। ओके, थर्ड ईयर की सैलरी कितनी होगी भाई? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 बाई 100 होल क्यूब एंड सो ऑन, राइट? तो देखो, यू आर गेटिंग द सेकेंड एंड थर्ड टर्म बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस 10 बाई 100। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस नंबर्स are in geometric progression. What is the common ratio? This is the common ratio. Okay, let us find that also. ये हो गया 100, ये हो गया 100 प्लस 10 बाई 110 बाई 100 हो गया 1.1। कॉमन रेशियो इज 1.1। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया था। Okay, let us do the second bit. Number of bricks needed to make each step if the staircase has total 30 steps. 30 steps है, okay? Provided that bottom step needs 100 bricks. अच्छा, सबसे नीचे वाले steps को है ना, you need 100 bricks. And each successive step, मतलब उसके next वाला step को you need 2 bricks less. तो 98, फिर 96, 94 एंड सो ऑन। अब आपको ये मालूम करना है कि भाई ये नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं। ऑब्वियसली नॉट, राइट? दिस सी दे विल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट दीज आर नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, 98 बाई 100 is 0.98. I'm dividing this A1, A2, A3, A4. 96 by 98 will not give you 0.98. Okay, so is it in geometric progression? No, not geometric progression. Okay, I hope this is clear. अच्छा भाई, ये वाला देखो, perimeter of each triangle. अच्छा, when the midterm of the sides of equilateral triangle whose side is 24 are joined to form another triangle. मतलब पहले आपके पास एक ट्रायंगल है विच इज अ ट्रायंगल 24 24 24, राइट? ईच साइड इज 24 बिकॉज इट इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। देखो, इट इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, राइट? 24। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। आई एम राइटिंग हियर पेरीमीटर, फर्स्ट पेरीमीटर। सो पेरीमीटर है क्या भाई? अगर आप इफ़ यू वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो 24 प्लस 24 प्लस 24 इज हाउ मच? 72।
तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज हाउ मच 72। और नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो भाई, ये 24 का मिड पॉइंट ले रहे हो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो इनसाइड दिस बिगर ट्रायंगल। तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 एंड दिस साइड विल ऑल्सो बी 12। ये हम सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे राइट, 12। तो ये भी 12, ये भी 12। तो भाई पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल कितना है भाई, पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल 12 12 12। तो भाई ये हो गया 36। फिर इसका मिड पॉइंट 6 6 6 होगा राइट। तो पेरीमीटर ऑफ द थर्ड ट्रायंगल इज 6 6 6 इज हाउ मच 18। फिर पेरीमीटर ऑफ इसका ये 6 6 6 अगर है तो ये मिड पॉइंट्स, तो ये हो गया 3 3 एंड 3 राइट। पेरीमीटर ऑफ द फोर्थ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 9। ओके, oh sorry, yes 9। I hope this is clear। ओके एंड सो ऑन। तो भाई अब नंबर्स आए क्या भाई, 72 36 18 9 एंड सो ऑन। इफ यू टेक दिस एज a1 a2 a3 a4, a2 डिवाइडेड बाई a1 है क्या, 36 डिवाइडेड बाई 72 भाई ये है हाफ 1/2। a3 डिवाइडेड बाई a2 है क्या भाई, 18 डिवाइडेड बाई 36 भाई ये भी है हाफ। a4 डिवाइडेड बाई a3 9 बाई 18 भाई ये भी है हाफ 1/2। सो इज द रेशियो सेम, यस। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, यस ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द पेरीमीटर्स आर फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कलर चेंज करते हैं भाई। Write 3 terms of the geometric progression when the first term and common ratios are given। अच्छा देखो, we know general form of geometric progression is ar square and so on, right? We need to write the first 3 terms। okay, write the 3 terms of geometric progression। okay, अच्छा भाई, a और r की वैल्यू मिल गई है हमें। a is how much 4, r will be equal to how much 3। तो ये हो गया सेकेंड टर्म 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 भाई ये हो गया 4 इंटू 3 स्क्वायर बिकॉज r इज 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 9। सो 4 12 एंड 36 एंड सो ऑन। ओके, तो भाई 3 टर्म्स है 4 12 एंड 36। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड वाला प्रॉब्लम है a इज इक्वल टू √5 और r इज इक्वल टू 1/5। ये भी आसान प्रॉब्लम है, डोंट वरी। हाँ, a और ar स्क्वायर। तो भैया a हो गया √5, ar है √5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ar स्क्वायर की वैल्यू है 1/5 होल स्क्वायर। सो दिस इज √5 डिवाइडेड बाई 5 और ये है √5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। सो ये है आपके फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। भाई नेक्स्ट वाला देखो, a इज 81 और r की वैल्यू है -1/3। यस, द रेशियो कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ar स्क्वायर ये टर्म्स है, a की वैल्यू है 81 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, 81 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 होल स्क्वायर। ये हो गया 81 भाई ये हो गया 27 -27। 81 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 ये हो गया 9। सो दिस इज 81 -27 एंड 9, 1 2 एंड 3। आई होप दिस इज क्लियर राइट। 3 टर्म्स। हाँ, let us do the fourth one। अरे बाप रे, I'll just change the color। a की वैल्यू 1/64 है, r की वैल्यू है 2। तो ar स्क्वायर 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, 1/64 1/32 भाई ये हो गया 4/64, ये हो गया 1/16 राइट।
1/64, 1/32, 1/16. These are the first three terms. Okay, आसान एक्सरसाइज है. ओके, लेट अस डू द थर्ड वन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीपी. अच्छा, आपको फाइंड करना है कि ये जीपी में है या नहीं. इफ दे आर इन जीपी, राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स. अच्छा भैया, फर्स्ट वन है 4, 8, 16. तो ये जीपी है या नहीं, देखो. A1, A2, A3. तो A2 डिवाइडेड बाई A1, 8/4. हाउ मच? 2. A3 divided by A2, 16/8. How much? 2. Common ratio same, right? So yes, this is geometric progression. Next term. अच्छा देखो, 4, 8, 16. अब ये नेक्स्ट टर्म आएगा कैसा भाई? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट? सो दिस विल बी 32. नेक्स्ट टर्म आएगा कैसा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, विच विल बी 64. 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 128. सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 32, 64 एंड 128. ओके, ऐसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स. ऑल राइट, सेकेंड वाला प्रॉब्लम करते हैं. 1/3 minus 1/6, 1/12 एंड सो ऑन. ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड. लेट अस फर्स्ट फाइंड A2 डिवाइडेड बाई A1. माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3. ये डिवीजन ऑफ डिवीजन में देखो, ये बिग डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. दिस 1/3 विल बिकम 3/1. सो दिस इज 1, दिस इज 2, माइनस 1/2. A3 divided by A2. A3 is how much? 1/12 divided by A2 minus 1/6. 1/12 multiplied by minus 6/1. भाई ये भी हो गया minus 1/2. तो common ratio is same, right? We need to multiply every term by minus 1/2. Okay? तो भाई ये था क्या? 1/3 minus 1/6, 1/12. अच्छा, ये टर्म देखो, इसको minus 1/2 से मल्टीप्लाई करो. सो दिस विल बिकम हाउ मच? minus 1/24. minus 1/24 को minus 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/48. ओके, ये हो गया नेक्स्ट. और 1/48 को यू मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1/96. अच्छा, सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस आर व्हाट? minus 1/24, 1/48, minus 1/96. Okay, all right, all right, all right, all right. So 5, 55, 5, 5, 5 and so on. Okay, हाँ, 55/5 करो भाई, ये टर्म और ये टर्म डिवाइड करो, 11 आ जाएगा आपको. 555 डिवाइडेड बाय 55 करो आप, यू विल नॉट गेट 11. ओके, देखो 55 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 550. सो ये 555 में जाएगा ही नहीं, 55, राइट? सो यू विल यू गेट 11? नो, इट विल नॉट बी इक्वल टू 11. सो इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? No, it is not geometric progression. Okay, so we need not find the next three terms. Easy peasy, right? Fourth one, -2, -6, -18. -6 by -2 करो भाई, 3 आ गया आपको, राइट? ये और ये डिवाइड करो. -18 by -6 करो भाई, 3 आ गया. ओके, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अच्छा, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स, -18 को मल्टीप्लाई बाई 3 करो. ओके, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई बाई 3 करो, फिर यहाँ पर जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 करो आप. ओके, आई थिंक यू कैन फाइंड इट. हाँ, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, 1/2, 1/4, 1/6. I am taking the second term dividing by the first term. 1/4, 2/1. भाई ये हो गया 1/2. Take the third term and divide by the second term. 1/4, 1/6, 4/1, 2/3.
clearly not geometric progression. ओके ओके भाई, नेक्स्ट वाला देखो, 3 - 3 स्क्वायर 3 क्यूब, take this term divide by 3, -3 square by 3 -3 will come. ओके देखो ये -3 होल स्क्वायर नहीं है ये, ऑलराइट ओके हाँ नेक्स्ट 3 क्यूब डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर, 3 क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स, लाइक दिस 1 2 3 4 बचा -3. ओके सो यस, इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? यस इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. भाई इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे भाई? -3 पावर 4, फिर 3 पावर 5, -3 पावर 6. ओके फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ वाला x 1 x. ओके ये और ये डिवाइड करो आप, 1/x आएगा, राइट. नाउ टेक द थर्ड वन डिवाइडेड बाय 1, दिस विल आल्सो बी 1/x. तो इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? यस. रेशियो क्या है भाई? 1/x है. तो देखो x 1/x, इसको 1/x से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट हाउ मच? 1/x². ओके इसको 1/x से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो सॉरी, यू विल गेट 1/x³. इसको 1/x से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1/x⁴. ओके तो इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं ये. ओके एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. भाई नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं 8th बिट, 1/√2 - 2 4√2. ओके ये और ये डिवाइड करो, 2/√2. ओके अब ये और ये डिवाइड करो, 4√2 डिवाइडेड बाय -2, ये हो गया -2√2, राइट. अब ये क्या है भाई? ये दोनों सेम है या नहीं? देखो रैशनलाइज करके देखते हैं. -2√2 बाई 2, 2 विल गेट कैंसल, -√2 यहाँ पर है, ऑलराइट, और यहाँ पर है -2√2. इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ना, नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके नाइन्थ वाला बिट 0.4 0.04 0.004 एंड सो ऑन. ये टर्म और ये टर्म को डिवाइड करो भाई. ओके देखो, टू सिंप्लीफाई लेट अस मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 40. ये हो गया भाई 1/10. ओके 0.1 0.004 ये टर्म डिवाइडेड बाय 0.04 द सेकेंड टर्म. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो भाई, बिकॉज वी हैव 3 नंबर्स आफ्टर पॉइंट. तो 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3. ओके तो भैया ये हो गया 40. ओके यस ये भी हो गया 1/10 0.1. ओके आई होप दिस इज क्लियर. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ऑलराइट. और सी यू कैन राइट दिस टर्म्स एज 4/10 4/100 4/1000, राइट. ओके सेम ही आएगा आपको रेशियो 0.1. सो व्हाट आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स नाउ? 0.00004 0.00004 फिर 0.00004 ऐसे आएंगे आपको नंबर्स, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. हाँ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड x so that x x+2 and x+6 are consecutive terms of geometric progression. consecutive मतलब एक के बाद एक. ओके अच्छा मतलब इफ यू टेक दिस एज फर्स्ट टर्म, दिस विल
will be your second term, this will be your third term. Consecutive मतलब एक के बाद एक, 3 terms. अच्छा, तो देखो, इफ़ यू हैव A1, A2, A3 एंड अगर ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए, राइट? A2 डिवाइडेड बाय A1 दैट शुड बी इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A2, ओके, बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ R आपको सेम आना चाहिए, राइट? सो लेट अस अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है. सो A2 डिवाइडेड बाय A1, ये A1 है भाई, इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A2. अच्छा, A2 इज हाउ मच? X plus 2. X is equal to X plus 6 divided by X plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, X plus 2 will become whole square. यहाँ पर आएगा X plus 6, राइट? एक्सपैंड दिस यूजिंग A plus B whole square. 2 स्क्वायर, ये हो गया 2x इंटू 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x. ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर मर गया, राइट? ये हो गया 4, ये हो गया 4x, ये हो गया 6x. ये 4 को यहाँ पे लेके जाओ, इट विल बिकम माइनस. तो ये हो गया 2x और ये हो गया 4. सो x की वैल्यू 4/2, इट विल बी इक्वल टू 2. सो यस, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच? 2. देखो, आप सब्सटीट्यूट करो, x प्लस 2, x प्लस 6, राइट? 2, 4 एंड 8. यस, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.